Welcome students to the fourth series of operating system lecture. Today's topic would be system calls and system programs. Our operating system functions in dual mode. One is the kernel mode and the second is the user mode. Before going to the system calls, we should know what these two modes are. Yes, whenever we boot our system, our hardware starts in a mode that is called a kernel mode. In this kernel mode, operating system is loaded and then the operating system starts the user application in user mode. So, when the system boots, it starts in kernel mode and operating system starts application in user mode. So, the user functions in user mode and the operating system interacts with the hardware in kernel mode. To provide protection to the hardware, we have privileged instructions which execute only in kernel mode. तो ये privileged instructions क्या होती हैं? कुछ ऐसी instructions जो हार्डवेयर के ऊपर अप्लाई होती हैं, तो हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जब भी यूज़र ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, तो हमारा सिस्टम जो है वो यूज़र मोड से कर्नल मोड में मूव करता है. कर्नल मोड ऑपरेटिंग सिस्टम मोड है और फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन को रन करता है और फिर इट कम्स बैक टू द यूज़र मोड. And by chance, if user attempt to run this privileged instruction in user mode, then it will treat the instruction as illegal and traps to the operating system. And operating system will send an error to the user. So this is the kernel mode. Now comes the user mode. When the system run user applications, like we are creating some document or using an application program, whether it's listening to a music or any other program, then the system is in user mode. When the user application requests for a service from the operating system, then there will be a transition from user mode to kernel mode. क्योंकि हमने पहले भी बात की कि operating system जो work करता है वो kernel mode में करता है, user जो काम करते हैं वो user mode में किया जाता है. जैसे ही कोई user कोई ऑपरेशन करने की ट्राई करता है जो कि कर्नल मोड में है, तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम मोड को चेंज करेगा फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड in order to fulfill the user's request, and then it will again come back to the user mode when it replies to that instruction. So what are system calls? In this topic we'll discuss what is a system call, working of a system call, why we need a system call, and the various types of system calls available in operating system. So the main question come here is, what is a system call? System call एक ऐसा mechanism है वो जो provide करता है interface between the user process and the operating system. देखो अभी आपको इस diagram से clear होगा, user के पास uppermost layer जो होती है वो user की होती है. User is given a user interface जिसके थ्रू वो इंटरैक्ट करता है. सबसे नीचे क्या है? कर्नल मोड जो कि हार्डवेयर से कनेक्टेड होता है. अब क्या होता है? यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते हुए अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम प्रोग्राम जो भी रन करता है वो कर्नल से इंटरैक्ट करने के लिए सिस्टम कॉल्स की हेल्प लेता है. सिस्टम कॉल ही एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू प्रोग्राम रिक्वेस्ट भेज सकता है to use the services of an operating system. So system call offers the services of the operating system to the user program via API. API किसको कहते हैं? Application Programming Interface. बीच में आप देख रहे हो सर्कल्स में जो दिखाया गया है, कुछ एक सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, कुछ एक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं. इन दोनों के बीच में हम जो डिफरेंस है वो लास्ट में इसी सीरीज़ में देखेंगे कि क्या होते हैं सिस्टम प्रोग्राम्स और क्या होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम. अभी जो समझने की चीज़ है वो ये है कि ये सिस्टम प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं ये यूज़र को जो यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं ये फ्रंट एंड होता है. जैसे आप सब ने सी की प्रोग्रामिंग की हुई है, सी जैसे ही हम टर्बो सी स्टार्ट करते हैं तो हमें एक इंटरफेस मिलता है जिसमें हमारे पास प्रोग्राम लिखने के लिए एक एडिटर होता है. उसके बाद उसके ऊपर मेन्यू होता है जिसके थ्रू हम कंपाइल रन कुछ भी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को. तो वो क्या है? एक यूज़र इंटरफेस है.
कोई भी हम प्रोग्राम यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है, तो जो हम यूज़र जिस सिस्टम पे, जो हमें अपने डेस्कटॉप पे दिखाई देता है या लैपटॉप पे दिखाई देता है, वो एक यूज़र इंटरफेस होता है। इस यूज़र इंटरफेस से सिस्टम कॉल्स जनरेट की जाती हैं और जो कर्नल से इंटरैक्ट करवाता है। तो हम क्या कहेंगे, सिस्टम कॉल्स आर द ओनली एंट्री पॉइंट्स फॉर द कर्नल सिस्टम। कर्नल तक जाने के लिए जो वन एंड द ओनली वन वे है, दैट इज थ्रू सिस्टम कॉल्स। अब आता है कि वर्किंग ऑफ अ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल कैसे जनरेट होती है, कैसे काम करके देती है। एक यूज़र जो है वो यूज़र मोड में काम कर रहा होता है, कोई वर्ड प्रोसेसिंग के एप्लीकेशन पे काम कर रहा है। स्टेप 1 में आपको दिखाई दे रहा है यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग। जैसे ही हमने उसको सेव करने की कमांड दी, सपोज हम वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वर्ड का कोई एडिटर खोला हुआ है हमने और हम उसमें काम कर रहे हैं। जैसे ही हम उसको सेव की कॉल देते हैं, तो सेव की जो कॉल है वो हार्डवेयर से कनेक्टेड है, क्योंकि हमें जो डेटा सेव करना है वो अल्टीमेटली मेमोरी में जाके सेव होगा, और मेमोरी जो है वो हार्डवेयर है। यूज़र डायरेक्ट मेमोरी पे स्टोर नहीं कर सकता जाके, वो ये नहीं कह सकता कि मेरा प्रोसेस यहाँ सेव हो जाए या इस एड्रेस पे सेव हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम फाइल के अंदर मेन्यू में जाते हैं और सेव को क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सेव को क्लिक करते हैं तो वी गेट सिस्टम कॉल। तो जो आपका इंटरफेस है, एपीआई है या फिर जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वो क्या करता है, वो एक सिस्टम कॉल जनरेट करता है, जो कि यहाँ पे सेकेंड स्टेप में है। अब सिस्टम कॉल जनरेट होने के बाद वो सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट की जाती है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इस एग्जांपल में, वो है सेविंग का काम। तो उसने डेटा को सेव कर दिया मेमोरी के अंदर और उसके बाद वो रिटर्न कर जाती है फ्रॉम सिस्टम कॉल, और फिर से आपका मोड कौन सा आ जाता है, फिर से आप यूज़र मोड में चले गए। सिर्फ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिस्टम कॉल इज डन इन कर्नल मोड। सी ऊपर का जो पोर्शन है, जो 1, 2 एंड 4 स्टेप्स हैं, वो सारे यूज़र मोड में एग्जीक्यूट होंगे। आप यूज़र प्रोसेस को एग्जीक्यूट भी वहाँ करोगे, उसको जैसे ही आपने सेव की कमांड दी या रन की कमांड दी, तो सिस्टम कॉल जनरेट होगी, वो भी यूज़र मोड में होगी। उसके बाद जब सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगी, तो वो कर्नल मोड में स्विच हो जाएगा। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र मोड से कर्नल मोड में कन्वर्ट कर देगा, और वहाँ से एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से जब रिटर्न आएगा, तो फिर से हम यूज़र मोड में आ जाएंगे। दिस इज़ द वर्किंग ऑफ अ सिस्टम कॉल। कैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम कॉल्स के थ्रू हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब आता है व्हाई वी नीड अ सिस्टम कॉल। वैसे तो आपको अभी समझ आ गया होगा कि हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सिस्टम कॉल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ताकि कोई एक यूज़र किसी दूसरे यूज़र की फाइल्स को एक्सेस ना करे और उनको एडिट ना करे, अनऑथोराइज्ड यूज़र मेनली। तो सिस्टम कॉल्स कब कब जनरेट होंगी, जैसे ही हम हार्डवेयर का कोई भी काम करेंगे, जैसे रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम फाइल्स, इट विल डिमांड अ सिस्टम कॉल। क्योंकि जो आपने रीडिंग करनी है, जहाँ से डेटा फाइल आएगी वो मेमोरी होगी, और जहाँ राइट की जाएगी वो दोबारा से, आपने कुछ एडिट किया उसमें, फिर से उसको सेव की कमांड दी, तो भी वो मेमोरी में काम करेगा। तो मेमोरी इज़ अ हार्डवेयर, तो वहाँ को उस मेमोरी के पोर्शन को एक्सेस करने के लिए वी नीड सिस्टम कॉल्स। फिर एक फाइल सिस्टम में जैसे ही आप कोई फाइल को डिलीट करते हो, क्रिएट करते हो, ठीक है, या फिर उसको रीनेम करते हो, देन ऑल्सो यू नीड अ सिस्टम कॉल। इसके अलावा सिस्टम कॉल्स आर यूज्ड फॉर द क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यू प्रोसेसेस। जैसे ही आप अपने प्रोग्राम के अंदर न्यू प्रोग्राम बनाते हो, जैसे ही हम न्यू क्लिक करते हैं तो उसको एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है आपके प्रोसेस को। तो जैसे ही प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट हुई, तो वो एक हार्डवेयर से रिलेटेड काम हो गया कि उसको कौन सा स्पेस मिलेगा जो कि आपकी मेमोरी में फ्री होगा। उस फ्री स्पेस में से आपको कुछ स्पेस प्रोवाइड की जाएगी, और आपके यूज़र नेम के साथ वो स्पेस जो होगी वो अटैच हो जाएगी, ताकि आगे जब आप उस फाइल को दोबारा से एक्सेस करना चाहो, तो सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपकी फाइल को फाइंड आउट करके ला सके और उसको आपके लिए ओपन कर सके। इसके अलावा जितने भी नेटवर्क कनेक्शंस हैं, वो सब भी सिस्टम कॉल से ही मेंटेन्ड है। नेटवर्क कनेक्शन मीन्स एक सिस्टम के साथ और कितने सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, किन से वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है, कैसे वो मैसेजेस सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, कहाँ से डेटा उसके पास आ रहा है। इस तरह का जितना भी काम है नेटवर्क कनेक्शन से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड, दैट इज ऑल्सो हैंडल्ड बाय अ सिस्टम कॉल। Apart from this, an access to hardware devices like scanner, printer, these two also need a system call. क्योंकि वो हार्डवेयर है हमारा,
जो हमने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, अगर सेम टाइम पे दो यूज़र प्रिंटर को एक्सेस करना चाहें तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हमारी क्यू जनरेट हो जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, दोनों ही यूज़र्स को फ्री कर देता है, वो दोनों की कमांड्स को सेव कर लेता है और एक बफर में स्टोर करके रखता है और फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपके प्रिंट आउट्स जनरेट करता रहता है। जैसे ही वो क्यू ख़त्म होगी तब वो प्रिंटर को स्टॉप करेगा। तो प्रिंटर के अंदर जो ये क्यू बनाई जाती है, जो बफर बनाया जाता है, इसको हम स्पूलिंग का कंसेप्ट बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो हैंडल्स द स्पूलिंग एंड बफरिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ आता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स जो हम यहाँ पे जनरेट करते हैं वो हमारे प्रोसेस को कंट्रोल करने में काम आती हैं, फाइल्स को मैनेज करने में काम आती हैं, जितने भी डिवाइसेस अटैच्ड हैं हमारे सिस्टम के साथ, चाहे वो इनपुट आउटपुट एक्सटर्नल डिवाइसेस कुछ भी हैं, उन सबको मैनेज करती है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखती है हमारे सिस्टम में और कम्युनिकेशंस का काम करती है। तो ये सब टाइप्स हैं हमारी सिस्टम कॉल की, जिनको हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो फर्स्ट कम्स द प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है? एक प्रोसेस क्या होता है हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक प्रोसेस पहले क्रिएट होता है, एक नया प्रोसेस आता है सिस्टम में, उसको सारे रिसोर्सेज मिलते हैं और वो एक रेडी क्यू में चला जाता है। वो रेडी है प्रोसेस अब रन होने के लिए। वो कुछ देर रन होता है और अगर उसको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो उस इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए वेट करता है। इतने में कोई दूसरा प्रोसेस सीपीयू में रन करता है और जब इसका काम इनपुट आउटपुट का कंप्लीट हो जाता है पहले वाले प्रोसेस का, वो दोबारा रनिंग स्टेट में चला जाता है एंड देन इट्स फाइनली टर्मिनेटेड। जब उसका पूरा काम खत्म हो जाता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है। तो प्रोसेस कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी काम हैं, क्रिएशन ऑफ अ प्रोसेस और टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोसेस, इसके अलावा लोडिंग ऑफ अ प्रोसेस, जैसे हमने लास्ट सीरीज में किया था कि एक प्रोसेस को लोड करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोडर बोलते हैं। लोड करता है और आपके प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। सपोज वी हैव गिवन अ कमांड टू रन एडिशन ऑफ 2 नंबर्स प्रोग्राम। तो उसमें क्या होगा, जैसे ही आपने प्रोग्राम को रन के लिए भेजा वैसे ही आपका प्रोग्राम जो होगा वो लोड हो जाएगा, तो उसको हम प्रोसेस बोलेंगे। लोड होके वो प्राइमरी मेमोरी में जाएगा और फिर उसको सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद उसमें कोई वेट और सिग्नल इवेंट आ जाता है। वेट कब होती है, अगर वो किसी इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए वेट करता है। उसके बाद जैसे ही उसका इनपुट आउटपुट इवेंट कंप्लीट हो जाता है वो सिग्नल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को या सीपीयू को कि आई हैव कंप्लीटेड माई जॉब, और वो रेडी क्यू में लग जाता है, दोबारा से रेडी है वो रन होने के लिए। फिर एंड एंड अबॉर्ट फंक्शंस, अगर बीच में किसी प्रोसेस को कोई रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं या फिर किसी प्रोसेस का पेरेंट जो है उसको एग्जिट करना है तो उसके चाइल्ड प्रोसेसेस को भी हम टर्मिनेट करते हैं कई बार, तो इस प्रोसेस को अबॉर्ट कहते हैं। इसके अलावा प्रोसेस से रिलेटेड एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ अ मेमोरी, जैसे ही कोई प्रोसेस क्रिएट किया जाता है तो उसको एक मेमोरी एलोकेट होती है और जैसे ही एक प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है अपना पूरा काम करने के बाद, तो जो उसको प्रीवियस मेमोरी एलोकेटेड थी उसको डी एलोकेट करता है और उसको फ्री मेमोरी स्पेस में डाल देता है ताकि आगे के प्रोसेसेस को वो मेमोरी एलोकेट हो सके। प्रोसेस कंट्रोल के लिए जो कमांड्स यूज़ की जाती हैं, दीज आर द क्रिएट प्रोसेस, एग्जिट प्रोसेस। इसके अलावा फोक कमांड, ये लाइनेक्स में यूज़ होती है फोक कमांड। फोक कमांड यहाँ लाइनेक्स के अंदर फोक कमांड किसी भी न्यू प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए दी जाती है। देन वी एग्जिट फ्रॉम अ प्रोसेस और प्रोसेस कैन एंटर अ वेट स्टेट with the help of this wait command. And this diagram is depicting the states of a process. There are basically 5 states in which a process moves from one state to another. First is the new state, ready state, running state. From running to it can enter the waiting state also, and from running it can enter to the ready state also due to the interrupt, and then final state is the terminated state. This process control would be defined in upcoming series. There is a complete chapter based on this process management. In there, we will study these 5 states of a process in a detailed manner.
Next is the file management. Related to a file, we have a lot of tasks like we need to create a file, we need to delete a file, then opening and closing of some file. We can do read operation, write operation, and renaming of a file. We can also get and set our file attributes. फाइल एट्रीब्यूट्स कैसे हो सकते हैं, जैसे हमने किसी यूज़र को उसके ऊपर राइट दी हुई थी पहले सिर्फ रीड करने की, अब आगे जाके हमें ये लगता है कि ये यूज़र जो है वो हमारा टीम का मेंबर है और इसको हमें एडिट करने की राइट भी देनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने फाइल एट्रीब्यूट्स को रीसेट करेंगे, उस यूज़र को रीड, राइट और एग्जीक्यूट 3 चीज़ की परमिशन अलॉट कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल के एट्रीब्यूट्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और इस फाइल मैनेजमेंट में जो हम सिस्टम कॉल्स यूज़ करते हैं वो है क्रिएट फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल, ओपन, रीड, राइट, क्लोज। ये जो ओपन और रीड कमांड्स हैं इस तरीके से ये लाइनेक्स में यूज़ होती हैं। ऐसे ही राइट एंड क्लोज कमांड भी हैं, ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड है। और ऊपर वाली क्रिएट फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल ये सब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होती हैं। इस डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा है कि एक मेन हमारी रूट है, उसके अंदर 2 यूज़र्स हैं, उन यूज़र्स के अपने अपने फोल्डर्स भी हैं और फाइल्स भी हैं। एक यूज़र 1 है, उसके पास एक फ़ाइल बनाई हुई है उसने sort.c, और एक फ़ोल्डर है, उस सब फोल्डर के अंदर एक और फाइल है a.txt। तो इस तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारी सारी फाइल्स को मैनेज करके रखता है, और जब भी हमें इन फाइल्स में से कुछ भी रीड, राइट, ओपन, क्लोज करना है तो उसके लिए वो सिस्टम कॉल जनरेट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम ही इनको हैंडल करता है। यूज़र डायरेक्टली अपनी फाइल के पास नहीं जा सकता क्योंकि वो मेमोरी में स्टोर्ड है। नेक्स्ट इज द डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, रिक्वेस्ट एंड रिलीज अ डिवाइस। मीन्स कि अगर आपको कोई डिवाइस की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आपने सपोज अपने प्रोग्राम के अंदर एक कमांड दी है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। इस टाइम जैसे ही आपने ये कमांड दी तो आपका सिस्टम जो है वो सिस्टम कॉल जनरेट करेगा। उसे पता है कि आपको जो ये आउटपुट देना है ये मॉनिटर पे देना है, तो वो क्या करेगा, इट विल रिक्वेस्ट द मॉनिटर, और जैसे ही वो रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड इफ़ द मॉनिटर इज़ फ्री इट विल रिलीज द डिवाइस। उसके बाद क्या होगा कि आपका आउटपुट जो होगा वो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर आप ये प्रिंट की कमांड में ये देते हो कि ये वाली जो कमांड है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसी फाइल में जाके स्टोर हो जाए, तो वो क्या करेगा, वो मेमोरी को कॉल देगा उस फाइल को ओपन करने के लिए और उसके अंदर डेटा को डालेगा और फिर उसको फाइल को क्लोज करेगा एंड इट विल सेव दैट फाइल। इसके अलावा डिवाइस मैनेजमेंट के लिए जो और फंक्शंस वो करता है दैट इज़ इट कैन अटैच एंड डिटैच अ डिवाइस। आपने देखा होगा जैसे ही आप पेन ड्राइव को इसके अंदर इंस्टॉल करते हो तो उसका डिवाइस ड्राइवर आता है, उसके साथ ही वो आता है पेन ड्राइव इज़ रेडी टू यूज़, ओपन और व्यू फाइल्स। ठीक है, तो आप उस पेन ड्राइव को यूज़ करते हो और जैसे ही आपका काम हो गया आप उसको राइट क्लिक करके रिमूव करते हो, रिमूव द डिवाइस सेफली। जैसे ही आपने रिमूव द डिवाइस सेफली किया ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सिस्टम कॉल जाती है एंड इट गिव्स द मैसेज यू आर फ्री टू रिमूव द डिवाइस, इट्स सेफ टू रिमूव अ डिवाइस। तो आप अपनी पेन ड्राइव को निकाल लेते हो। इसी तरीके से कोई और आप प्रिंटर उसके ऊपर लगाते हो तो उसका भी डिवाइस ड्राइवर जाता है और वो अटैच होता है, और जैसे ही आप उसकी वायर निकाल देते हो तो डिटैच हो जाता है। माइक्रोफोन्स आप यूज़ करते हो, कोई भी आप उसके अंदर डिवाइस वायर इन करते हो जैसे ही, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास उसकी कॉल जाती है और वो उसको अपनी लिस्ट में डाल लेता है कि कौन कौन सी डिवाइसेस मेरे पास अवेलेबल हैं, ताकि कल उसके पास अगर कोई यूज़र उस डिवाइस को यूज़ करने की कॉल देता है, रिक्वेस्ट करता है उस डिवाइस को यूज़ करने की, तो वो उस लिस्ट में चेक करता है कि उसके पास वो डिवाइस है, अगर है तो इट विल रिलीज द डिवाइस इफ़ इट्स अवेलेबल। ठीक है, इसके अलावा इट कैन गेट एंड सेट द डिवाइस एट्रीब्यूट्स। हर एक डिवाइस के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, आप उन एट्रीब्यूट्स को आप देख भी सकते हो कि इस पर्टिकुलर जो हमारा डिवाइस है इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, और उन एट्रीब्यूट्स में अगर कोई आप चेंजेस करना चाहते हो तो आप वो चेंजेस भी कर सकते हो। चेंजेस मीन्स जैसे आपका प्रिंटर है, आपने कोई कमांड दी है, बीच में आप उस कमांड को कैंसिल करना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो उसके
तो वो वाला जो आपकी कमांड है वो जितने प्रिंट्स निकले हैं उतने ही निकलेंगे, वहीं पे कैंसिल हो जाएगी। अगर आपने पॉज करनी है कोई कमांड, पॉज कर सकते हो। उसको रिज्यूम करना है दोबारा से तो आप उसको रिज्यूम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने डिवाइसेस के डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को सिस्टम कॉल्स के थ्रू मैनेज कर सकते हो। तो इसमें जो सिस्टम कॉल्स यूज होती हैं दैट इज लाइक सेट कंसोल मोड, रीड कंसोल, राइट कंसोल। कंसोल हियर इज द मॉनिटर, so you can read from the monitor, we can write to the monitor, or you can set the mode of a monitor also. इसके अलावा हमारी सिस्टम कॉल्स जो होती हैं वो इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस के लिए भी जनरेट की जाती हैं। आपने देखा होगा कि आप अपने सिस्टम पे सेट टाइम कर सकते हो, डेट सेट कर सकते हो, टाइम जोन सेट कर सकते हो। जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, ये वाला मेन्यू खुलता है, जब आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ से अपनी डेट और टाइम को सेट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, यू कैन व्यू, और आप अपनी टाइम जोन्स को भी सेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको किसी प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स देखने हैं, आप टास्क मैनेजर में जाओगे तो वहाँ पे आपको सारे रनिंग प्रोसेसेस दिख जाते हैं। उन प्रोसेसेस में कहाँ पे सीपीयू कितना अलॉट हुआ है किस पर्टिकुलर प्रोसेस को, उस प्रोसेस की प्रोग्राम आईडी क्या है। तो प्रोसेस के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, मेनली लाइनेक्स सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपके पास कमांड्स हैं, तो आप उन कमांड्स के थ्रू प्रोसेस आईडी गेट कर सकते हो, उस प्रोसेस को लिस्ट करवा सकते हो कि इस टाइम कितने प्रोसेसेस, लिस्ट पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है, कौन कौन से प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, कौन से मोड में हो रहे हैं, कौन सा यूज़र जो है वो कौन से प्रोसेसेस को एक्सेस कर रहा है, और लास्ट एक्सेस टाइम भी आ जाता है कि किसने लास्ट में इस प्रोसेस को एडिट किया था। तो इस तरीक़ा के बहुत सारे फीचर्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं सिस्टम कॉल्स के, गेट करंट प्रोसेस आईडी, सेट, यू कैन सेट द टाइमर, यू कैन सेट योर सिस्टम इन अ स्लीप मोड और हाइबरनेट मोड, है ना। और उसके अलावा आप प्रोग्राम आईडी को गेट करवा सकते हो, अलार्म के लिए उसको कॉल दे सकते हो। स्लीप की कमांड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम होती है। तो इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ दीज सिस्टम कॉल्स अपनी इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर सकते हो, एंड यूजर कैन get that information whenever needed. अब आता है कम्युनिकेशन मोड। कम्युनिकेशन के लिए भी कुछ एक सिस्टम कॉल्स यूज होती हैं। जैसे ही आपके डिवाइस नेटवर्क में हो आप, यू कैन क्रिएट डिलीट कम्युनिकेशन कनेक्शंस। आपके इस नेटवर्क में कितने लोग हैं, कौन कौन से सिस्टम्स अटैच्ड हैं, सारी इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है। जैसे ही आप उस नेटवर्क में से किसी डिवाइस को निकाल देते हो तो तभी की तभी ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो जाता है और उसका एड्रेस आपकी रेसिपिएंट लिस्ट में से हट जाता है। इसके अलावा यू कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, यू कैन अटैच और डिटैच रिमोट डिवाइसेस और सिस्टम्स, आप रिमूव भी कर सकते हो, अटैच भी कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन का काम जो सिस्टम कॉल्स के थ्रू होता है, जैसे कि इन फिगर्स में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, दो प्रोसेसेस भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इनके दो मॉडल्स पढ़े थे पहले भी, शेयर्ड मेमोरी मोड भी हो सकता है और मैसेज पासिंग मोड भी हो सकता है। तो इस तरीके से दो प्रोसेसेस भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, दो फ्रेंड्स, दो लोग भी आपस में कर सकते हैं, और पूरे का पूरा ग्रुप भी आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए भी सिस्टम कॉल्स की हेल्प लेता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक क्रिएट फाइल मैपिंग। फाइल मैपिंग वो क्रिएट कर लेता है। इसमें क्या होता है कि कितने सिस्टम्स आपस में अटैच्ड हैं, कहाँ कौन कौन से लोग आपकी रेसिपिएंट लिस्ट में हो सकते हैं। इसके अलावा मैप व्यू ऑफ फाइल, पूरी फाइल्स का मैनेजमेंट करता है और मैप व्यू दिखा देता है आपको, ताकि आप डिसाइड कर सको कि कौन से सेंडर के पास आपको भेजना है, कहाँ से आपको मैसेज रिसीव करना है। यू कैन चेक दिस लिस्ट। Now, hope you understood what are the system calls. अब आपने लेयर्ड आर्किटेक्चर में देखा कि जो सिस्टम कॉल्स हैं और जो आपका यूज़र इंटरफेस है, उन दोनों के बीच में प्रोग्राम्स हैं कुछ जिनको हम सिस्टम प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिस्टम प्रोग्राम्स। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ अ सिस्टम प्रोग्राम, व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स। उसके अलावा we'll discuss what are application programs, and finally what is the difference between the system programs and application programs. तो
हमने इसी डायग्राम को पहले स्टडी किया था जिसमें हमने सिस्टम कॉल्स ली थी। अब हम इसकी ऊपर वाली लेयर पे आ जाते हैं जिसमें हमें सिस्टम प्रोग्राम्स दिखाई दे रहे हैं इन सर्कल्स में। तो व्हाट इज अ सिस्टम प्रोग्राम? सबसे पहले द सिस्टम प्रोग्राम सर्व्स एज अ पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होते हैं। इट ट्रेडिशनली लाइज बिटवीन द यूजर इंटरफेस एंड द सिस्टम कॉल्स। आपको ये डायग्राम से साफ क्लियर हो रहा है कि यूजर इंटरफेस और सिस्टम कॉल्स के बीच में ये काम करते हैं। यूजर कैन ओनली व्यू अप टू द सिस्टम प्रोग्राम, ही कांट सी सिस्टम कॉल। आप सिस्टम कॉल्स को नहीं देखते हो, वो उसको ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं सिस्टम प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। आपने, जैसे कि हमने पहले भी बताया, कि आप सिर्फ सेव का कमांड देते हो उसको, न्यू का कमांड देते हो उसको, उसके लिए क्या सिस्टम कॉल बनती है और कहाँ से वो आपको एग्जीक्यूट करके देता है, ये यूज़र को नहीं पता होता। तो यूज़र जो होता है वो सिर्फ सिस्टम प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्रोग्राम तक ही व्यू कर सकता है, उसके बाद का जो है आर्किटेक्चर वो व्यूएबल नहीं होता। Some of the system programs are simply user interfaces and other are complex. तो इसमें कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे सिस्टम प्रोग्राम्स की, जैसे लैंग्वेज का कंपाइलर होता है, सी का कंपाइलर। आप सबको पता है, आप सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, फिर आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। ऐसे ही लिंकर होता है। लिंकर का क्या काम होता है? जो आपकी सपोज सी के प्रोग्राम में जितनी भी हेडर फाइल्स हैं या कोई और फाइल्स हैं जो आप उस प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हो, तो जैसे ही वो प्रोग्राम मेमोरी में जाता है तो उसके साथ बाकी की फाइल्स को भी लिंक किया जाता है उस प्रोग्राम को, जो जो रिक्वायर्ड होंगी। हेडर फाइल्स भी हो सकती हैं, लाइब्रेरी फाइल्स कुछ और भी हो सकती हैं, और एनी नंबर ऑफ फाइल्स। उसके अलावा लोडर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके प्रोग्राम को प्रोसेस में कन्वर्ट करता है और उसको आपकी प्राइमरी मेमोरी में ले जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा सारा सेव होता है। सेकेंडरी मेमोरी से जैसे ही आप एग्जीक्यूट की कमांड देते हो तो वो पहले लोड होता है। और असेंबलर क्या होता है? असेंबलर एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम है जो आपकी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को मशीन लेवल लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा सिस्टम प्रोग्राम्स में बहुत सारे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, FTP जैसे। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक जगह से दूसरी जगह अगर फाइल जानी है आपकी, तो उसके लिए जो सेट ऑफ रूल्स यूज़ होते हैं उस सॉफ्टवेयर को हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स यूज़ करता है, SMTP है जैसे। इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो मैसेज को मूव करने में काम आते हैं, ईमेल्स को सेंड करने में काम आते हैं। इसके अलावा सिस्टम प्रोग्राम्स में बहुत सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं, लाइक जैसे कि एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं, सिस्टम क्लीनर सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सारे सिस्टम प्रोग्राम्स हैं जो सिस्टम को अप टू डेट रखने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे सिस्टम प्रोग्राम्स के। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट में क्या काम आते हैं? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, कंपाइलर्स होते हैं, डिबगर्स होते हैं, असेंबलर्स होते हैं। These system programs provide additional support features for different programming languages. Different programming languages के लिए different support systems चाहिए होते हैं हमें। जैसे सी के लिए हमें सी का कंपाइलर चाहिए होगा, असेंबली लैंग्वेज कोडिंग में हमें असेंबलर्स चाहिए होते हैं। ये सब क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज से हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम। उसके बाद प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन के लिए हमें लोडर्स और लिंकर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लोडर्स हम डिस्कस कर चुके हैं और लिंकर्स हमने डिस्कस किया अभी अभी, कि जितनी भी फाइल्स उसमें होती हैं उन सबको वो लिंक कर देता है आपस में। जैसे ही वो 1 बाय 1 आपकी जो आपने प्रोग्रामिंग की हुई है वो एग्जीक्यूट होती है, वैसे वैसे आपकी जितनी भी फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारी आपस में एक दूसरे से डेटा लेती हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए जो आपके सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, FTP, मैसेजिंग, ईमेल सॉफ्टवेयर्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा स्टेटस इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए हमने अभी पीछे पढ़ा कि सिस्टम कॉल्स यूज सिस्टम मेंटेनेंस में काम आती हैं, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में काम करती हैं। तो स्टेटस इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम्स प्रोवाइड रिक्वायर्ड डेटा ऑन द करंट और पास्ट स्टेटस ऑफ द सिस्टम। आप करंट स्टेटस भी देख सकते हो और पास्ट में कौन सी फाइल कौन से यूज़र ने एडिट की है, कितने टाइम पे की है। जैसे कि आप अपना फाइल एक्सप्लोरर खोलते हो, आप देखते हो कि वहाँ पे आपके हर प्रोग्राम में लास्ट एक्सेस टाइम भी आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या बताती हैं? उसका स्टेटस बताती हैं, करंट। तो दिस में इंक्लूड द सिस्टम डेट, सिस्टम टाइम, अवेलेबल मेमोरी इन द सिस्टम। आप माई कंप्यूटर में जाओ और उसमें आप देखते हो कि एक आपको
ग्राफ दिखाई देता है कितनी मेमोरी आपकी यूज़ हो चुकी है और कितनी आपकी मेमोरी फ्री है, डिस्क स्पेस कितना यूज़ हुआ है, कितने यूज़र्स लॉगिन हुए हैं आपके सिस्टम में, टाइम भी आता है कितने बजे कौन सा लॉगिन हुआ, कौन सा लॉग आउट हुआ, एंड सच टाइप ऑफ स्टेटस इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स। तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम को असिस्ट करते हैं मेंटेन करके रखने के लिए सिस्टम को। बट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो यूज़र के लिए वर्क करते हैं, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए काम आते हैं। जैसे वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का क्या काम होगा, कोई आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में काम करेगा। स्प्रेडशीट की बात करें तो वो आपकी डेटा, जैसे आपको कोई डेटा स्टोर करना है, कोई डेटा शीट बनानी है, तो उसके लिए हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर दैट डज रियल वर्क फॉर द यूज़र। सिस्टम प्रोग्राम्स ने हमारे लिए कुछ डायरेक्ट काम नहीं किया, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प किया। बट एप्लीकेशन प्रोग्राम is created to perform a specific task for a user. The application software acts as a mediator between the user and the system software. This type of a software is written in high level languages. Application programs जो होते हैं वो आपने देखा होगा, आप उसमें इंग्लिश लाइक लैंग्वेज यूज़ करते हैं क्योंकि वो डेवलप भी हाई लेवल लैंग्वेजेस में किए जाते हैं और वो कन्वर्ट करते हैं आपके डेटा को high level language to machine level language with the help of system softwares. It is user specific and is designed to meet the different requirements of the user. different requirements के लिए different आपको application programs मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको वेब ब्राउजिंग करनी है तो आपके पास वेब ब्राउजर्स मिलेंगे, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ये सारे वेब ब्राउजर्स हैं। इसके अलावा आपको म्यूज़िक रन करना है तो आपको VLC मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, बहुत सारे ऐसे मीडिया प्लेयर्स मिलेंगे। मूवी देखनी है तो मूवी के आपके प्लेयर्स होंगे। आपको कोई अपनी फोटोग्राफ्स को एडिट करना है तो आपको फोटोशॉप मिलेगा, पेंट का सॉफ्टवेयर मिलेगा। एजुकेशन के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि आजकल ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, लर्निंग चल रही है, इसके अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे गूगल मीट है, जूम है, ठीक है, टीम्स है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जो एजुकेशन ग्रैब करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, लेक्चर्स डिलीवर करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम्स को हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बोलते हैं। Now I think you can differentiate between what are system softwares and what are application software. So this is how we distinguish between system software and application software. Hope students these topics are clear to you. What are system calls, what are system programs, what are application programs, how can we differentiate system programs from application program, why is a system call needed, no, or system calls are a part of operating system. All these queries hope are clear to you, and still if anything is left in your mind then please leave a comment. I'll resolve your queries. Thanks for today.